All right, let's get you the latest on the situation in Uttarakhand after the landslide, the flash floods that took place in Uttarkashi. Now, Chief Minister Pushkar Singh Dhami is at the site where he is, taking stock of all the relief and rescue operations that are taking place. The number of deaths has risen now to 5. And many people, however, remain missing. These visuals that you're seeing are actually of the highway on the way to Uttarkashi. As you can see, there is the highway there has also got affected by landslides. A part of it has even been washed away. And this is a big challenge when it comes to the rescue and relief operations that are currently taking place as rescue teams try and make and relief materials try to make their way up to Uttarkashi. Even NDTV teams, as they're trying to make their way to the disaster site. Along the way, many landslides and heavy rain is also being reported. As you can see there, the Army, the NDRF and the ITBP teams are also at the spot in Uttarkashi helping with relief and rescue operations, as many people continue to be missing. They may be still there in the silt and the mud that came rushing down from the mountain after this cloudburst is what took place in the higher reaches and the river, the Khil Ganga river. We saw yesterday those visuals of the mountain, of the rain and water and mud simply rushing down the mountain, completely engulfing this village in that area. And the Chief Minister, as we said, conducted an aerial survey of the Uttarkashi area as well as the village of Dharali that got submerged in the slush and mud that came down the mountainside. These visuals on your screens are, however, of the highway. As you can see, a lot of damage that took place to the highway there. NDTV's Rajiv Ranjan spoke with the NDRF DG for the latest. Chief Minister Dhami has said that over 130 people have been rescued. Let's just listen into what the NDRF DIG had to say. उत्तराखंड में आए हुए भूस्खलन के बाद क्या अपडेट है, बात करते हैं डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन सैदी एनडीआरएफ के। सर, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? सर, क्या देखिए, अभी फ़िलहाल वहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है और तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। राहत शिविर की स्थापना की गई है। फ़िलहाल वहाँ पर आर्मी के कॉलम्स हैं, ITBP है, BRO है, SDRF है, स्थानीय प्रशासन है, ये कार्रवाई कर रहे हैं। NDRF की 3 टीम जो है वो कल मार्च कर गई थी और लैंडस्लाइड्स के कारण कंटिन्यूस लैंडस्लाइड्स हो रहा है ये ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे पर। उस कारण से जो है रोड बाधित है, उसको भी रिपेयर किया जा रहा है और जैसे ही ये क्लियर होगा हमारी टीम वहाँ पहुँचेंगी और इस ऑपरेशन में शामिल होंगी। क्या बहुत दिक्कत आ रही है, चूँकि सड़क मार्ग जो है कई जगहों पर टूट गया है, लगातार बारिश हो रही है, तो बचाव अभियान जिस तरह से चलना चाहिए तो वैसा नहीं चल पा रहा है? सर, नहीं, अभी फ़िलहाल वहाँ पर जो ट्रूप्स हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही ये क्लियर होगा तो हम भी उसमें शामिल होंगे। एनडीआरएफ की कितनी टीम वहाँ गई हुई है और किस तरह के इक्विपमेंट लेके गई हुई है वहाँ पर? हमारी 3 टीमें रास्ते में हैं बाई रोड और 2 टीमें हमारी एयरलिफ्ट के लिए तैयार हैं देहरादून एयरपोर्ट पर। उनको अभी ये प्रक्रिया चल रही है। हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं और जो सिविलियन एजेंसीज़ हैं उनके पास भी जो स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो तबाही का जो रिपोर्ट आई और किस तरह की तबाही हुई, जो मलबा जो दिख रहा है तो लग रहा है कि प्रलय टाइप का कुछ आया हुआ है, जल प्रलय जिसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़े क्षेत्र में एक घटना हुई है और निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा बॉडीज़ को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। All right, so the NDRF, they're telling us about the rescue and relief operations. Well, as you can see, this is the village of Dharali yesterday, which got engulfed by the flash flood. This is after there was a cloudburst in the higher reaches, and then all the mud, silt, and boulders came rushing down. As we saw yesterday, we could simply see roofs of houses, rising above the mud. Now, the number of deaths officially has gone up to 5, though several people remain missing. As we had said, even the army camp in Harsil was affected by the flash floods yesterday. In fact, many of the teams are finding it a huge challenge to get to the area, as the highway too has experienced landslides on several parts of it. Heavy rainfall also continues in the area. But as the Chief Minister has just said, that around 150 people have been rescued so far. 11 army jawans are also missing.
since yesterday, since this landslide that took place and since this cloudburst and flash floods that took place. This is a region which is very close to Gangotri, which is one of the big pilgrimage spots of Uttarakhand. Let's just take a look at this report sent to us by NDTV's Ravish. से तभी निकाला जा सकता है जब एसडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक इक्विपमेंट को साथ में लेकर धराली पहुंचेगी। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चूंकि हेलीपैड पूरी तरीके से बह चुका है। धराली के पास में हर्षिल में ही आर्मी का हेलीपैड था जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करते थे, वो पूरी तरीके से बह चुका है। तो अब एसडीआरएफ के सामने, एनडीआरएफ के सामने चुनौती यह है कि वो पैदल रास्ते से जो है वो धराली, हर्षिल और सुक्खी टॉप पर पहुंचना, और यही वजह है कि तमाम अपने खोजी कुत्तों के साथ में एनडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ में पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि बारिश बंद हो गई है तो अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कुछ देर के बाद में धराली में और भी टीमें पहुंच जाएं, क्योंकि अभी तक देखिए जो टीमें धराली में हैं, 3 टीमें एसडीआरएफ की मौजूद है धराली में, वो टीमें हैं जो सबसे नज़दीक थी। यानी गंगोत्री में जो एसडीआरएफ की टीम के तैनाती थी, वो जो टीम है वो धराली अभी तक पहुंची है। जो देहरादून, ऋषिकेश और जो दूसरी जगहों से एसडीआरएफ की टीम थी वो अभी फ़िलहाल धराली नहीं पहुंच पाई है, वो अभी रास्ते में हैं और वो पैदल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हालात इस तरीके के हों कि बड़े बड़े बोल्डर लगातार गिर रहे हों, रास्ते सारे बंद हों, और यही नहीं, हम इस वक्त उत्तरकाशी से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले हैं और उत्तरकाशी से अगर आप धराली की ओर बढ़ेंगे तो दर्जन भर जगहों पर इसी तरीके की छोटी बड़ी जो लैंडस्लाइड है वो हुई है। अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद कमान संभाल रहे हैं, उत्तरकाशी वो पहुंच चुके हैं, कंट्रोल रूम उन्होंने बनाया है और ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन वो यहीं पर कैंप करेंगे। तो अब उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जो सरकारी मशीनरी है वो और तेज़ी के साथ में काम करेगी। और अभी आप देखिए कि ख़राब मौसम के होने के बावजूद खुद मुख्यमंत्री चौपर से वो आए और उन्होंने एक जोखिम लिया कि उनको यहाँ पर वो लैंड करें। तो इसके पीछे का कारण यही था कि सरकारी मशीनरियों को और ज़्यादा मजबूती के साथ में लगाना राहत और बचाव काम में। स्थानीय कुछ लोगों से मेरी बात हुई है जो धराली के आसपास के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि एक मलबा बहुत सारा भागीरथी नदी के साथ में गिर गया है, तो भागीरथी नदी का जो जलस्तर है वो आसपास के इलाकों में बढ़ा है और उसके वजह से आसपास के जो गांव हैं उनके घरों को भी खाली करवा लिया गया है ताकि उनको कोई खतरा ना हो। All right, Ravish reporting there from the highway. As you could see, there was a landslide also, and this is really the challenge that many of the rescue teams are facing, though several teams are already at the spot and over 100 people have also been rescued. 5 people have now died. But let me now go across to Kishore, who joins us from the highway en route to Gangotri. Remember, this village also Dharali lies en route Gangotri. Let's go across to him. And Kishore, अभी क्या सिचुएशन है? जैसे रवीश बता रहे थे, काफ़ी टीम्स हैं रेस्क्यू वर्क में अभी जुड़ी हुई हैं। डॉग्स और स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर लोग कहीं धंसे हुए हैं उनको खोजने में। बिल्कुल, इस वक्त हम जो भटवाड़ी है उससे चढ़ी थी एक जगह है वहाँ पर मौजूद है और 200 मीटर का एक पैच पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है और हालत पूरी तरह से यहाँ बद से बदतर है। वजह यही है कि इस वक्त यहाँ पर रास्ता जो ग्रिफ है, जो बीआरओ की तरह ही जो बॉर्डर रोड्स बनाती है, ग्रिफ हमारे साथ मौजूद है, उनके कुछ अधिकारी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। राजकिशोर जी, सर वहाँ पर भी काम चल रहा है, सड़क बंद है और अभी हम जहाँ पर सड़क खराब हुई है, जहाँ पर सड़क धंसी है, वहाँ पर काम किया जा रहा है और किस तरीके की तैयारी की जा रही है सड़क मार्ग को ठीक करने के लिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं दानिश भी मौजूद है और दानिश लगातार कल से ही आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जहाँ जहाँ सड़क टूटी हुई है या खराब हुई है, जहाँ पर सड़क धंसी हुई है, वहाँ पर रिपेयर का काम चल रहा है। कब तक ये पूरा होगा, किस तरीके से यहाँ पर टीमें लगाई गई? हमारे पूरा आरसीसी 2 आरसीसी है, पूरा
में लगे हुए हैं। अच्छा सर, पैच होने में कितना दिक्कतें क्या दिक्कत आ रही है कि इक्विपमेंट नहीं आ पा रहा है। इक्विपमेंट का हम लोग एसेस नहीं कर पाते कि इतना आएगा। हैवी लोडेड है, यहाँ बड़ा बड़ा बोर्डर है जहाँ देख रहे हैं। इनको ब्लास्टिंग का है, जोन है, यहाँ ब्लास्टिंग पर बैन लगा हुआ है, तो हम लोग प्लास्टिक वैसा रखते नहीं थे, ड्रिलिंग से कर रहे हैं। इसके अलावा जो आगे गंगारी में पुल टूटा है वो 100 मीटर का, उसमें काफी दिक्कतें आ रही है क्योंकि पानी का मसाला और ज़्यादा वॉश आउट हो गया। हाँ, तो वहीं पर लॉन्च करेंगे, ब्रिज लॉन्च करेंगे, किस तरीके करेगा बेली ब्रिज लॉन्च करेंगे। क्या कितनी देर में बना पाएंगे? वो कल तक बनाएंगे। ये रोड शुरू होगा जैसे हम लोग बेली ब्रिज का पार्ट सब दानिश अवेलेबल है साहब से अपने एक पास। चीज और जानना चाहेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए वो बहुत जल्दी बनता है। इंजीनियर्स का आगे जाके हम लोग जो मौसम रहते हैं, सभी लोग चार्ट है वो करते हैं, जारी उसको किया लॉन्च है करने में और 2 कई घंटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ भारी बारिश की आशंका जताई गई है और लगातार कब से देख रहे हैं कि कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड की भी मामले सामने आ रहे हैं। जो गिरफ्त के ये अधिकारी हैं, इनका कहना है कि बहुत ही जल्द वो रोड बना दी जाएगी और एक पुल जो टूटा हुआ है क्योंकि उस पर वैली ब्रिज बनाया जाएगा। इसके अलावा जो ये 200 मीटर का पैच है ये अगले 2.5 घंटे में खुलने के पूरे आसार दिख रहे हैं और इनकी लगातार जो कार्रवाई चल रही है यानी लगातार जो काम कर रहे हैं उससे उम्मीद है कि ये 2.5 घंटे में खुल जाएगा। जी किशोर, और बाद में पता, पहले तो ऑफ कोर्स धराली गांव का जो विजुअल हमने कल देखा था जब धंस गया था, जो क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड हुआ था, लेकिन बाद में पता चला हरसिल में भी आर्मी कैंप अफेक्ट हुआ था। उसके बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, हरसिल में जो एक फ्लड आया था जिसकी वजह से वहाँ पर जो अभी जानकारी मिल रखी है करीबन 11 जवान जो सेना के थे वो लापता है, उनको तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि हरसिल में इंडियन आर्मी का बेस कैंप है, इसके अलावा ITBP है वहाँ पर और हर जगह रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, यानी इंडियन आर्मी के जवान भी अपने जवानों को तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा जो धराली गाँव है वहाँ पर भी लोगों को तलाश किया जा रहा है। दिक्कत की बात यह है कि जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, इसके अलावा जो दूसरे ITBP के जवान हैं, SDRF है, NDRF के कुछ लोग पहुंचे हैं, तो वहां पर वो लगातार पिछले, अगर अभी का समय देख लेंगे तो पिछले 36 घंटों से ज़्यादा यानी 40 घंटों के करीब वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। थकावट ज़रूर है क्योंकि उनको रिप्लेस करने के लिए दूसरी टीमें नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन वो फिर भी उनका जज्बा है कि लोगों को तलाश किया जाए, उनको बचाया जाए, राहत दी जाए। यही वजह है कि लगातार वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी टीमों को भेजने के लिए यहाँ पर कड़ी मशक्क़त की जा रही है, सड़कें खोली जा रही है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है और कहीं ना कहीं ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। इस वक्त अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर 200 मीटर का रोड वॉश आउट हो चुका है, उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं एक तस्वीर दिखाऊं कि इस वक्त जो भागीरथी नदी है वो बहुत ज़्यादा उफान पर है, यानी ऊपर इलाकों में काफ़ी बारिश हो रही है। थोड़ा सा मौसम ज़रूर खुला है और अगर ये मौसम खुलता है तो जल्दी ही सड़कें बनेंगी, जल्दी ही जो सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा वैली ब्रिज बनाया जाएगा और जो टीमें हैं उनको जल्दी से यहाँ से रेस्क्यू के लिए, जो रेस्क्यू करने के लिए लोगों को भेजा जाएगा। जी, और फाइनली किशोर, जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी वहाँ गए हैं जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। उन्होंने एरियल सर्वे भी किया है। उन्होंने कहा काफ़ी लोग, 100 से ऊपर लोग रेस्क्यू भी हुए हैं। बिल्कुल, वहाँ पर मुख्यमंत्री खुद वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने उत्तरकाशी में अपना कैंप लगा दिया है और हर एक चीज़ पर, यानी सड़कों को खोलने की क्या प्रोग्रेस है, इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से वहाँ पर टीमें आ रही है, किस तरीके से वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, तो लगातार वहाँ पर टीमें पहुँच रही है। ये कुछ लोग आ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लाइट के काम करने जा रहे हैं। तो बिजली कहाँ गई है? ये पूरा पटवारी से लेके और गगना। तो कहाँ से आए थे आप? हम लोग उत्तरकाशी से आए। अच्छा, ये लोग उत्तरकाशी से, आप भी जा रहे हो वहाँ? तो बिजली जब ऊपर गायब होती है उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, तो ये बिजली, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी वॉश आउट, जो पानी आया था फ्लड उससे कई जगह पे वॉश आउट हो गई थी, तो उनको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर बिजली विभाग के जो लेबर्स है, इसके अलावा अधिकारी है, वो पहुँच रहे हैं ताकि बिजली को सुचारू रूप से किया जाके। वहाँ इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो अब यही है कि वहाँ पर तमाम चीज़ें, चाहे पानी है, खाना पीना है, लोगों को डॉक्टर
की सुविधा देनी है, मेडिक की सुविधा देनी है, इसके अलावा लोगों को जल्दी से वहाँ निकालना है। तो ये सारी चीज़ों पर मुख्यमंत्री खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम अधिकारियों की यहाँ ड्यूटी लगा दी है, चाहे वो IPS अधिकारी, IAS अधिकारी है, डॉक्टर्स है, सारा प्रशासन इसी पर फोकस है कि यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, जल्दी से उनको राहत पहुँचाई जा सके, इस सड़क को दोबारा शुरू किया जा सके। इस सड़क का सिर्फ महत्व लोगों तक पहुँचने का नहीं, बल्कि ये भारत तिब्बत चीन बॉर्डर तक जाती है, गंगोत्री नेशनल हाईवे, और यहाँ से बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, तो सामरिक दृष्टि से भी ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। जी Right, well, Kishore, हमारे साथ बने रहिए. Let me just bring our viewers up to date with what really is happening. And the Gangotri highway, now this is the highway that connects to Dharali village, that goes through Uttarkashi to this area. It has been impacted, as Kishore was showing you. Parts of it have been washed away, and now efforts are on to really repair this highway. But even as those efforts are on, the rain is continuing in this area. We showed you those visuals of the rainfall, as well as the kind of landslides that are taking place. This is the only road that really connects through Uttarkashi. So that is the big challenge currently for the rescue teams. They're not being able to get to Uttarkashi to help with the rescue and relief work because of these connectivity issues. There are, of course, helicopters that are being used. We saw the Chief Minister also conducted an aerial survey via helicopter. He is there at the spot. A camp has been set up from where he is directing and administrating all the rescue and relief operations. But let's go back to Kishore, who is on that very same highway trying to make his way to Uttarkashi. And Kishore, if you could tell us more about the damage. जैसे हम देख रहे हैं आपके पीछे ये पूरा यहाँ पर लैंडस्लाइड्स आए हैं, बोल्डर्स दिख रहे हैं. अभी जो एफर्ट लगातार हो रही हैं इसको रिपेयर करने में, बट बारिश भी हो रही है, इसके बारे में हमको बताइए. बिल्कुल, मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था कि उत्तरकाशी के अलावा जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर लगातार बारिश रहेगी, ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. चूँकि जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ये जो रोड खोलने का काम है, यानी जो 200 मीटर का पैच वॉश आउट हो गया था उसको खोलने का काम है, उसको दोबारा से बनाने का, रिस्टोर करने का काम है, वो लगातार चल रहा है. चाहे बारिश हो रही थी या नहीं, लगातार ये काम कर रहे हैं और अगले 2.5 घंटों में इनका ये दावा कर रहे हैं कि अगले 2.5 घंटों में इसे खोल देंगे. इसके अलावा यहाँ से करीबन 16 किलोमीटर आगे गंगानी का 16 मीटर एक पुल बह गया, 100 मीटर का पुल बह गया, जिसको खोलने के लिए वहाँ पर टीमें पहुँच रही है. ये सड़क ठीक हो जाती है तो यहाँ से तुरंत वैली ब्रिज के लिए यहाँ पर टीमें भेजी जाएंगी, जो वहाँ पर उसको वैली ब्रिज बनाएगी और उसको खोल देगी. उसके अलावा भी कई जगह पे कई बड़े पैचेस है, करीबन 6 से 7 ऐसे पैचेस हैं जो सड़क टूटी है. यानी अभी रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं, इससे पहले जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इसके पीछे ठीक 6 किलोमीटर पीछे करीबन 100 मीटर का जो रोड है वो. All right, so Kishore, bringing us that big breaking news of the kind of challenges being faced when it comes to the rescue and relief operations. The number of deaths have gone up to 5. The Chief Minister said over 130 people have been rescued. But as Kishore was reporting from that highway, this is the highway to Gangotri and it goes through Uttarkashi, and this is blocked currently. Kishore also telling us about the bridge that has been washed away. This is the bridge that goes across to the flood affected Dharali village. That is the village that we saw those visuals yesterday of the cloudburst and flash flood just coming in and just sweeping away all the buildings that were built up alongside that river. It was the Khil Ganga river, and now a bridge, a key bridge that joins up to Dharali village has also been damaged, has been washed away, and this is proving to be a huge challenge for rescue teams to reach the spot. Just take a look at your screens of the national highway. This is a national highway in the mountains. This is going through Uttarkashi towards Gangotri, and that is where Dharali village is, but it's been affected by the landslides and completely damaged, and this is the reason why many teams are not being able to reach and get the relief materials also to the spots where they are currently needed. This is even as there are dozens, in fact over 100 army men, ITBP, NDRF all engaged in the rescue and relief efforts, but they've been working around the clock. More relief material is needed, more people are needed, more manpower on the ground to help with this
huge relief effort that is currently needed. Many people, remember, continue to be missing, so efforts are on to find them. Yesterday it was mud, slush, boulders that came sweeping down the mountain, engulfing the entire village and those houses of Dharali, and we don't know how many people have been swept away. So really the search operations are needed, and currently rescue teams are facing these challenges of damaged roads, damaged bridges, as well as heavy rainfall. Let's just listen into what Chief Minister Pushkar Singh Dhami had to say on the relief efforts so far. अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। Right, let's listen into what Ajay Bhatt, BJP MP, has to say on the devastation in Uttarkashi. जी, क्या कुछ स्थिति है अभी इस वक्त की बात की जाए तो आपको क्या कुछ जानकारी मिल रही है उत्तरकाशी से? लगातार काम चल रहा है, सड़कें दरक गई हैं और नेताला में कल काफ़ी देर तक रोड ब्लॉक रही, जिससे आने जाने में बहुत परेशानी हुई है। और भटवाड़ी में तो रोड सीधे ही नीचे चले गई है, आवाजाही रुकी हुई है। इसमें अगर मौसम साफ देता है तो आज हमारे सारे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाएंगे, जो चंडीगढ़ में भी हैं और सरसावा में भी खड़े हैं। कष्टकारी समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उत्तरकाशी में उतर चुके हैं और मैं समझता हूं कि जिस गति से काम चल रहा है, आज शाम तक कई चीज़ें साफ हो जाएंगी। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री को, वो वहाँ पहुँचे। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, लगातार माननीय गृह मंत्री जी हमारी सरकार से, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में हैं। हम सब चिंतित हैं। हम भी अपनी तरफ से वहाँ लोगों से समाचार ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव, उनसे भी मेरी अभी बात हुई है। 120 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी 200-250 लोग रास्ते में भी फंसे हैं। जो भी फंसे हैं उनके सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। कहीं पर भोजन की व्यवस्था हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, अन्य व्यवस्थाएं, वो